up close and personal में, I'd love to introduce you to Dr. Rehan Zia, who's a principal academic in computer animation, visual effects at the National Center of Computer Animation. He's done a whole bunch of things, and by the way, what's really important is also the fact that he is our producer's mentor as well. So you know, उनके आने से पहले मुझे कासिम ने इतना बोला हुआ था कि oh my god, my mentor is coming and this and that, and you know he's great and you're gonna love talking to him and you know he's gonna be great on the show. So I'm pretty sure आप लोग इससे बहुत कुछ सीख सकते हैं. मैंने इंट्रो में भी आपको बताया था कि how this has become the new thing. So let me tell you a little. He's a fellow of the Royal Photographic Society, ठीक है, and आपको already पता है कि fellowship highest level of distinction होती है. He's also a fellow of the Royal Society of Arts. He is an Epic Games virtual production fellow as well, a certified nuke trainer, and he has also been the head of training at Hollywood Netflix visual effects studio based in London and Paris. Wow, how are you doing? I'm doing very well, alhamdulillah. Thank you. It's great to have you on the show, Dr. Rehan Zia. Thank you for having me. Absolutely. So हम basically आपसे आज थोड़ा सा सवाल पूछेंगे with respect to career in computer animation, games and visuals, and there are a lot of people who really into it. In fact, my own son is really into it as well. So अगर हम इसके बारे में बात करते हैं, तो can you share a bit about your own journey first? My own journey started with, I would say, A-levels. I wanted to do arts, but वो होता है कि जी arts is not It's not considered, yeah. So I had to settle for computer science, and then I gravitated towards multimedia because that gave me a creative outlet. Halfway through the degree, I found computer animation, and I thought this is what I'm doing. So उस वक्त कोई specific degree courses नहीं थे यहाँ पे. तो मैंने देखा क्या टूल सेट रिक्वायर्ड है, और कंप्यूटर एनिमेशन में आपको साइंस की भी नॉलेज चाहिए होती है, प्रोग्रामिंग की भी और आर्ट्स की भी. तो साइंस की तो मेरी कंप्यूटर साइंस की डिग्री चल ही रही थी, उसके साथ साथ मैंने आर्ट्स को कोर्सेज साथ में करने शुरू किए, आर्ट एंड ड्राइंग एंड सो ऑन. मूविंग ऑन, मास्टर्स भी अगेन आई डिड इन कंप्यूटर साइंस, क्योंकि और कोई डिग्री नहीं थी. इकरा यूनिवर्सिटी में मास्टर्स इन कंप्यूटर साइंस विद अ मेजर इन मल्टीमीडिया. साथ में मैं फिल्म मेकिंग कर रहा था, फोटोग्राफी, 3D एनिमेशन के कोर्सेज कर रहा था ऑन द साइड. और होते होते फिर ये हुआ कि इकरा यूनिवर्सिटी को मैंने, जो वाइस चांसलर और चांसलर थे, क्योंकि मैं इंडस्ट्री में भी काम कर रहा था, उनको पिच किया, पुश किया कि जी इस तरह का कोई कोर्स नहीं है, आप शुरू करें. तो इकरा यूनिवर्सिटी का मीडिया डिपार्टमेंट जो है वो मैंने इस्टेब्लिश किया था, और कासिम जो आपके प्रोड्यूसर हैं वो वहीं से पहले बैच से हैं. हम आप लोगों से डिस्कस कर रहे थे about Zia's journey and how you know he has actually been holding this gadget in his hand, which is really tempting me a lot as well. And वो अपने साथ और भी बहुत ज़्यादा सामान लेकर आए हैं. How do you feel about these? You know, we can call them toys as well. Yeah. How do you feel about them? Exactly big boy toys. Absolutely. तो बस yeah. Are you really particular about your gadgets, just as people usually are? Like I remember there was a time when I went for a trip and I told my friends that was a new first DSLR I ever had, and I'm like, मैं गिर जाऊँ, सही है, please मेरा कैमरा बचा लेना. Absolutely. बहुत महंगा है. बिल्कुल. Camera care first comes first. So, absolutely. You were telling us about your journey. My journey, इकरा यूनिवर्सिटी का स्टार्ट करने के बाद आई स्टिल फेल्ट कि मुझे एनिमेशन ज़्यादा करनी है और करना है. आई ऑलरेडी हैड द टेक साइड कवर्ड विद माय अंडरग्रेड एंड मास्टर्स इन कंप्यूटर साइंस. तो मैंने देखा कौन सी यूनिवर्सिटीज़ पूरी दुनिया, क्योंकि मैं कहीं पे भी जा सकता था अगर पाकिस्तान से बाहर ही जाना था. तो एंड आई लुक्ड एट जो बेस्ट कोर्स था वो बोर्नमथ यूनिवर्सिटी थी और एक और जगह था. अच्छा. नेशनल सेंटर फॉर कंप्यूटर एनिमेशन 1989 का सेटअप हुआ है, जब कंप्यूटर एनिमेशन कमर्शियल यूज में आ रही थी. अच्छा, 1989 में कमर्शियल यूज में आई थी. Yeah, so it's like a pioneer in computer animation education, और क्वींस अवार्ड भी मिल चुका है इनको, और रिसर्च की भी it's the top place. तो वहाँ पे फिर मैंने डिसाइड किया वहाँ जाना है, क्योंकि मास्टर्स की डिग्री थी, 1 साल की थी, which was much cheaper, और जितने भी कोर्सेज हैं वो आर्ट और साइंस का मिक्स पढ़ाते हैं. जो सबसे ज़्यादा टेक्निकल हमारा MSc कोर्स भी है, उसमें भी सिनेमाटोग्राफी और आर्ट का कंपोनेंट होता है. अच्छा. और जो सबसे ज़्यादा आर्टी कोर्स भी है उसके अंदर भी हम स्क्रिप्टिंग और प्रोग्रामिंग पढ़ा रहे होते हैं. तो इन दैट सेंस मैंने जाके MA डिजिटल इफेक्ट्स किया, विजुअल इफेक्ट्स.
और उसके बाद I'm so sorry to cut you off. What are some of the softwares you use as well? Because you know कितने लोग हैं जो अभी देख रहे होंगे who want careers in visual and you know काफ़ी दफ़ा हम तो इतनी छोटी सी चीज़ से overwhelm हो जाते हैं कि यार Adobe Photoshop यूज़ करूँ, Lightroom यूज़ करूँ, हम तो इस तरह की चीज़ों में ही फंसे रहते हैं. So what would you recommend? जो टूल है ना, कोई भी सॉफ्टवेयर टूल, दैट्स जस्ट अ टूल. जो भी आपको कंफर्टेबल हो, जो आपकी कंफर्ट जोन में हो, जो आपके पास एक्सेसिबल है. ब्लेंडर फ्री है, अनरियल इंजन है जो कि फ्री टूल्स हैं. हम जो यूज़ करते हैं, हम माया यूज़ करते हैं, हुडीनी यूज़ करते हैं. माया इज गुड. माया इज़ वेरी गुड. इंडस्ट्री का मेन सॉफ्टवेयर माया है विजुअल इफेक्ट्स और एनिमेशन में. हुडीनी इज़ फॉर विजुअल इफेक्ट्स, सिमुलेशंस वगैरह के लिए. न्यूक यूज़ करते हैं जो आफ्टर इफेक्ट्स का काउंटर पार्ट है. आफ्टर इफेक्ट्स लेयर बेस्ड. आफ्टर इफेक्ट्स का काउंटर पार्ट है, लाइक इट्स अ कंपटीशन ऑफ इट. एक तरह से आफ्टर इफेक्ट्स ब्रॉडकास्ट वगैरह में यूज़ होता है. I've used After Effects a little bit. Seems pretty fancy though. It is, yeah, it's really nice. But फिल्म के अंदर जब आप हॉलीवुड मूवीज की बात कर रहे हैं, और वो तो आपको बहुत ज़्यादा पावर चाहिए होती है, कंट्रोल चाहिए होता है, तो वो नोड बेस्ड सॉफ्टवेयर है न्यूक, जो कि इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है थ्रू. तो इसके अलावा और भी software. And you know, Rehan, just to keep it very like conversational based as well, how has training people been in London and Paris, Netflix and Hollywood? आपने उनको train किया. You even worked for John Wick का Chapter 4. You helped train the. I helped train, the resources that were working on the actual movie. How cool is that, John Wick? So, John Wick, इसके साथ एक Jonathan Glazer की मूवी आ रही थी, Heart of Stone थी, सैंडमैन, और इस तरह के काफ़ी सारे प्रोडक्शंस वहाँ पे चल रहे थे. अच्छा. तो बहुत अच्छा, बहुत रेप्यूटेबल स्टूडियो है लंदन और पेरिस बेस्ड. वहाँ पे मैं हेड ऑफ ट्रेनिंग था. अच्छा. और मैं उनका पूरा ट्रेनिंग स्ट्रक्चर देख रहा था, ऑनबोर्डिंग देख रहा था. Oh, lovely. Junior artists. So I love how you're paying it forward as well. That's something I really appreciated. And I think the selling point for me definitely had to be the fact कि आपने यहाँ पे आके इकरा यूनिवर्सिटी में बोला कि इस तरह के कोर्सेज होने चाहिए. देखें, you learning and you moving away from your journey has made way for so many people right now to pursue it. और यहाँ पे क्या आपको लगता है पाकिस्तान कभी उस लेवल तक पहुँचेगा? आप जब पाकिस्तान की रिसोर्सेज देखते हैं तो आपको लगता है कि इसमें इतना टैलेंट है कि ये भी जॉन विक पे खुद बच्चा जाके काम कर सकता है? आई एम श्योर जो हमारा टैलेंट है, जो हमारे रिसोर्सेज हैं, अगर हम उसको सही तरह से इस्तेमाल में लाएं तो हम बहुत आगे जा सकते हैं. बहुत आगे जा सकते हैं. मगर मेन चीज़ ये है कि उनको एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच के साथ लेके चलें. और आगे बढ़ें. और बहुत सारे इंडिपेंडेंट सोलो एफर्ट्स होते हैं. हमें चाहिए एक कलेक्टिव एफर्ट करें. एंड द इंस्टीट्यूशन शुड शो इट और द गवर्नमेंट शुड facilitate it, because ये पढ़ना भी बड़ा एक महंगा खर्चा है. Absolutely. You know, it's not something that you can just get up and be like, अच्छा हाँ. It's like आप डॉक्टर बनने में भी आपका टाइम लगता है, but ये भी चीज़ें अब उतनी ही टेक्निकल होती हैं. So you know, you were living in Bournemouth and you will tell me you are living there. I do live in Bournemouth. I like how I moved you randomly. So tell me about photography over there. Tell me about what a beautiful place it is. How living over there is like. It's putting a smile on your face. You're missing home. I love going back tomorrow. क्योंकि मैं पढ़ने गया था बोर्नमouth, और जॉब्स जो फिल्म की थी इंडस्ट्री की ज़्यादातर लंदन में थी. और आई गॉट यूज टू बोर्नमouth. लंदन, मुझे कराची से हूँ मैं, तो कराची की ही बहुत यादें, लेकिन वो उस तरह की कि आपको ट्रैफिक के थ्रू पहुँचना है, एंड इट्स अ रैट रेस. तो बोर्नमouth वाज वेरी काम, वेरी पीसफुल. और उसके साथ मुझे इस्लामाबाद वाइब. इस्लामाबाद भी अब बहुत बिजी हो गया, बट इट्स वेरी स्मॉल टाउन, 600,000 पीपल अक्रॉस 3 टाउन्स जो मिलके बोर्नमouth का लोकेलिटी बनती है. और इट्स बाय द सी, इट्स द वार्मेस्ट प्लेस इन द यूके. इट्स गॉट अ लवली बीच. और जो कोस्ट है, इट्स नोन एज द जुरासिक कोस्ट, बोर्नमouth से थोड़ा आगे, जहाँ पे पहले डायनासोर फॉसिल्स मिले थे और अभी फॉसिल्स मिलते हैं. अभी भी आपको? वाओ, हाउ इंटरेस्टिंग. तो आप कभी कैमरा लेके निकलें इन द एरिया? मैं एंड जस्ट एब्सोल्युटली. तो मेरी सारी फोटोग्राफी, मैं लैंडस्केप फोटोग्राफी करता हूँ, पोर्ट्रेट्स भी करता हूँ मैं, लेकिन ज़्यादातर जो मेरी लैंडस्केप होती है वो आइल ऑफ परबेक और इंजन. टेल मी अ लिटिल बिट अबाउट योर lenses and why you choose this and why not are you in the rat race of Sony, Alpha, Canon, Nikon? देखें, सारे कैमरास अच्छे होते हैं. इट्स अबाउट आपको इस्तेमाल करना आना चाहिए. अब मैं जैसे But what is your likeness towards this? What is that attracts Dr. Rehan towards? Full frame sensor है, कोई भी कैमरा हो. It's not just
के पैनासोनिक मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ इस वक्त, Yeah. लेकिन सॉलिड है, काफ़ी And easy to carry by the way. रोबस्ट है। मैंने रियलाइज किया है कि Canon 5D Relatively. Mark III जी। अब तो खैर काफ़ी पुराना हो गया है, बिल्कुल। बट जब वो मैंने लिया था तो उसको कैरी करने के लिए तो मैं एक्सेस बैगेज ही हो जाती थी literally, बिल्कुल। कंधे पे रख के। आजकल वो इफ़ यू हैड टू रेकमेंड अ कैमरा टू पीपल, एनी ब्रांड, नथिंग, आप क्या बोलेंगे अगर वो फुल फ्रेम अभी अगर कोई शुरू कर रहा है आपको देख के, और अगर फोटोग्राफी शुरू करना चाह रहे हैं तो आप क्या रेकमेंड करेंगे? मैं कहूँगा कि आप जो कैमरा आपके लिए अफोर्डेबल है आप वो लें। और लेंस साथ पहला में कौन सा लें? 50 मिलीमीटर प्राइम। 50? प्राइम, जबरदस्त, या द पैनकेक लेंस। नो पैनकेक पैनकेक ही हुआ 50। पैनकेक भी आते हैं उसमें, लेकिन जस्ट 50 मिल, और कोई जूम नहीं, कुछ नहीं, आपको खुद आगे पीछे मूव करना होता है अगर आपको। व्हिच इज गुड, राइट? बिल्कुल। और लंदन जैसी जगह में तो ये आई थिंक ज़्यादा सही रहते हैं बिकॉज स्पेसेस थोड़ी छोटी होती हैं। लाइक आई नो यू नॉट इन लंदन, but I remember when I was learning photography, so there were a lot of bloggers I was following from there, so they really support these lenses कि आपको distance चाहिए होता है ना काफ़ी। अच्छा, so tell us a little more about some research projects or industry collaborations you're currently involved in. रिसर्च प्रोजेक्ट्स मेरे अभी एक मेरी PhD स्टूडेंट हैं जो अपना ख़त्म कर रही हैं। विजुअल इफेक्ट्स एनिमेशन लोग समझते हैं ये खाली एंटरटेनमेंट, फिल्म और गेम्स वगैरह के लिए है, लेकिन वो अपना जो PhD कर रही हैं वो है रिहेबिलिटेशन ऑफ पेशेंट्स विद लोअर बैक पेन यूजिंग गेम्स। सो गेम्स के अंदर जो आप हेडसेट पहन के गेम खेलते हैं उसके अंदर वो एक्सरसाइज प्रोग्राम इनकॉर्पोरेट किया हुआ है जो कि आपको बैक पेन रिहेबिलिटेशन के लिए एक्सरसाइजेस करनी होती है। How nice. तो आप बोर नहीं होते, आप इंगेज रहते हैं और आपको पता भी नहीं चलता और आपकी और आप exercise रिहेबिलिटेशन कर भी हो रही लेते होती है। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं जो The world is really changing, इन द वर्क्स हैं। इसी तरह डिजिटल हेरिटेज और प्रिजर्वेशन की बात करें तो एक और मेरी स्टूडेंट जो कर रही थी वो ये था कि जो पुराने रूइंस होते हैं उनके स्टोन वर्क के अंदर, क्योंकि पेंट वगैरह ख़त्म हो जाता है वेदर की वजह से, तो उसमें जो पेंट रेमिनेंट पेंट पिगमेंट है उसको लेके उस पूरी बिल्डिंग को स्कैन करके 3D के अंदर लाके और दोबारा डिजिटली उसका पेंट रिस्टोर करें VR और AR एक्सपीरियंसेस के लिए। Wow, how do you do that? Like through VR and AR? Yeah, how do you restore the paint of a... तो आप basically you use the remnant paint to inform what the pigment needs to be, what the color needs to be, और फिर आपको कलर साइंस बहुत बड़ी फील्ड है तो आपको उसको देखते हुए डिजिटल कलर के अंदर मैप करना बहुत मैसिव एक Color science is a big field, and color science, you had me at the word color science. I mean, I've always been obsessed with. So what happens in color science? Tell us. So basically हमारी बहुत लंबी चीज़ें आ जाती, परसेप्शन ऑफ कलर जो है वो बहुत बड़ा टॉपिक है। कि हम कलर परसीव किस तरह करते हैं, हम आँखों से कलर किस तरह देखते हैं, कलर कैमरा किस तरह रिकॉर्ड करता है, स्टोर और फिर डिस्प्ले किस तरह करता है, और फिर दोबारा वो हमें कैसे परसीव होता है। तो ये एक बहुत बड़ी फील्ड है। Absolutely. बहुत बड़ी फील्ड है। अच्छा, but it's a good field, right? तो अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर हमने विजुअल इफेक्ट्स पढ़ा हुआ है और अगर पीपल हु वाचिंग यू एंड द पेरेंट्स हु प्रोबब्ली वाचिंग यू राइट नाउ एज वेल, वो अगर उनके बच्चे उनको जाके, लाइक आई वाज मेंशनिंग टू यू, माय कजन वेंट एंड टोल्ड हिज डैड सम टाइम अगो एंड ही इज लाइक, व्हाई डू यू वांट टू डू दिस, लाइक व्हाई डू बिजनेस है, बिजनेस करो। बिल्कुल राइट। तो अगर आप लोगों को ये एडवाइस दें कि आप कितने करियर्स इस चीज़ से पिक कर सकते हैं तो ज़रा ये बताएं। एब्सोल्युटली। तो हम जैसे मैंने MA डिजिटल इफेक्ट्स की कोर्स जो मैंने पढ़ा था उसके ऊपर हम लोग 19 स्टूडेंट्स थे, 19 में से 17 डिफरेंट नेशनैलिटीज़, तो इट वाज अ वेरी इंटरनेशनल मिक्स। बट जो स्टूडेंट्स आए भी थे, वी टेक स्टूडेंट्स फ्रॉम बैकग्राउंड सच एज मैथमेटिक्स, फिल्म मेकिंग, आर्ट एंड डिज़ाइन, कंप्यूटर साइंस, ऑल ऑफ दोज थिंग्स। तो इनकी एप्लीकेशंस भी इन एरियाज़ में हैं। अब जैसे आर्किटेक्चर है उसके अंदर ये इस्तेमाल होता है, प्रोडक्ट डिज़ाइन में इस्तेमाल होता है, ऑटोमेटिव इंडस्ट्री बहुत इस्तेमाल करती है इन एरियाज़ को, मेडिकल एप्लीकेशंस बहुत बनती हैं। आप सर्जरी सिखा रहे हैं उसके लिए आपको सिमुलेशंस बनानी है, एयरप्लेन से फ्लाइट सिमुलेटर्स होते हैं। आपके इसी तरह फिर हेल्थ केयर के अंदर चले जाएं, ऑपरेशंस और सर्जरी और ये सारी चीज़ें हैं, डिजिटल रेस्टोरेशन की मतलब अगर देखें तो ये हर चीज़ में एब्सोल्युटली पेनिट्रेट हो रहा है। इवन फैशन, अब वर्चुअल फैशन आ गया है, तो देयर आर ऑल ऑफ दीज एरियाज जहाँ पे इनकी एप्लीकेशन है एंड मोर।